I will still do most of the things myself. So वो बचपन से that was instilled in me क्योंकि time management my mother had to do that. जी. You know सुबह उठ के आपने नाश्ता भी बनाना है और लंच भी पैक करना है और फिर बच्चों को छोड़ना है और अपने काम पे जाना है. So it was something that I saw as a child. And then my mother was a very strict parent. अच्छा. Extremely strict parent. मुझे नहीं लगता था ये पहले. When I was growing up तो बहुत strict थी. मुझे कहीं जाने की इजाज़त नहीं थी. Night spends करने की इजाज़त नहीं थी दोस्तों के घर. आपने खदीजा के घर कभी नाइट स्पेंड नहीं की? Well, maybe once in 20 years I would say. School तक I was not allowed to spend the night out. उसके बाद college जाके you know क्योंकि dorms में बहुत friends रहते थे. So college I think जाने के बाद is when my mother kind of she didn't relax on the front के उनको basically she had no choice क्योंकि you know college में there's assignments and you're working in groups overnight so अच्छा reluctantly she would allow me to stay over but strict parent and also she was very very anxious as a parent. Really? क्योंकि बचपन से you know she felt completely alone like मेरे बचपन से. जी जी. Because there was no support from the family. क्यों? When my father died तो हमारी जो family company थी जी. My father was the major shareholder of this construction company. और जब उनकी death हुई तो सारे shares divide हो गए family में और मेरी अम्मी को कुछ नहीं मिला. And she was so young और उस वक्त इतनी वो एक mental trauma से गुजर रही थी कि वो उन्होंने लड़ा भी नहीं अपने rights के लिए. Maybe that also stuck in my head. Maybe मैं अब जो इतनी vocal होती हूँ about women's rights, I think it's because मैंने अपनी अम्मी को देखा कि उन्होंने अपने rights के लिए कोई stand नहीं लिया, उन्होंने कोई so she was left with nothing. शायद उन्होंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो डर गई थी कि अकेली थी वो. No, she didn't know. She didn't know any better. Oh, okay. It's like she didn't know कि मुझे क्या करना चाहिए. And I think डरी ही भी थी कि मेरे husband की death हो गई है, 2 छोटे बच्चे हैं, उनको मैंने protect करना है, मैं किस से लड़ूंगी. सही. But this was family. ये कोई strangers नहीं थे. जी. So anyways, इसलिए हम लाहौर शिफ्ट हो गए and my mother started a new life, literally. क्योंकि अब्बू की भी पूरी family side की कराची में mostly थी और अम्मी की भी. अम्मी के भी जो siblings थे उन्होंने कहा हमारे साथ आके रह लो ये वो but my mother was like you know I want to separate myself and मुझे अपने बच्चे खुद पालने हैं according to what I want see. And उनका ज़िंदगी में सिर्फ एक गोल था for us, a good education. That's it. Nothing else mattered. So when we started school, खुशकिस्मती से हमें grammar school में merit scholarships मिल गई क्योंकि हम afford तो कर नहीं सकते थे grammar school में पढ़ना. It's one of the most expensive schools in Lahore. It is. So couldn't afford that. तो मेरी फुप्पो वहाँ पे administrator भी थी. अच्छा. And हमें जो principal थी नीलम हुसैन, she basically offered me a merit scholarship, which is given to students जो underprivileged होते हैं या deserving होते हैं but they can't afford it, but they pass the entrance exam really well. So I topped my entrance test for grammar school. Yeah. Class 2? No, Montessori. Oh, yeah. अच्छा. You know, there were things, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे पता थी जो एक 3 साल के बच्चे को नहीं पता होती. You know, कि what do you call a shell? Like she picked up a shell. I remember my mother still tells me. And I was like, it's a shell. Yeah. Maybe my love for the ocean goes way back. वो तो हम सबको पता है जो आपको follow करते हैं. So basically that schooling, you know, was taken care of क्योंकि scholarship मिली. उसके बाद college NCA शुरू किया. And आयशा मुझे अभी तक याद है हम आंटी नीलम उनको आंटी नीलम कहते थे हम सब हमारी प्रिंसिपल जो थी उनके जब दफ्तर में आप जाते थे आपकी एक पेंटिंग लगी होती थी जिसमें आपने एक सनग्लासेस बनाई हुई हैं और यू नो आई वाज सो रिवेटेड बाय दैट पेंटिंग नॉट जस्ट देन बट इयर्स लेटर जब मैं वापस रियूनियंस के लिए गई हूँ वो पेंटिंग अभी तक लगी हुई और आपने जो उसमें वो अब नहीं लगी हुई अब वो मैंने वापस ले ली and I gave it to someone
and I haven't seen that painting in years. तो आपने मतलब आगे तोहफा दे दिया हाँ, किसी को? तोहफे दे दिए, सारी पेंटिंग्स मैंने लोगों को गिफ्ट कर दी। आयशा, आप इतनी टैलेंटेड आर्टिस्ट थी और यकीनन है, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करती। आपने क्यों नहीं आपने ये परस्यू किया अपना ये फन? यार you know, when I was growing up, जब मैं कॉलेज स्कूल में थी तो पेंटिंग was my life. Yeah. It was my direction. स्कूल में भी A levels तक I had painting. I topped the subcontinent in A level art. Wow. Yeah, and then I went to NCA. Yep. और मैंने पेंटिंग में ग्रेजुएट किया and painting was it. Yeah, मैं you सिर्फ were पेंट so करना good. चाहती थी, लेकिन थैंक यू, बट आई somehow started एक्टिंग। मुझे ऑफर्स मिली, एक सिटकॉम मैं करती थी कॉलेज में, कॉलेज ड्रीम्स के नाम से, जी, आप मैंने उस दिन क्लिप भी जिसकी देखी। क्लिप्स आजकल फिर रिसर्फेस कर रही हैं, कनेक्टेड टू यू नो जस्ट समथिंग। सो एक्टिंग शुरू कर दी एंड यू नो द स्केड्यूल, यू नो हाउ इट And you get sucked into it. आप जब दिन में बिल्कुल 14 घंटे काम कर रहे हैं, आपका पेंटिंग करेंगे। दुरुस्त। सो इनिशियली पेंटिंग वॉज अ ग्रेट वे टू सपोर्ट द फैमिली, क्योंकि जब मैंने कॉलेज से ग्रेजुएट किया तो आई स्टार्टेड सपोर्टिंग माई फैमिली। ठीक। बल्कि कॉलेज के दौरान ही सही। मैंने अपनी एजुकेशन तो खुद तो कॉलेज के दौरान आप पेंटिंग ही करती थी और बेचती थी? आई वॉज मेकिंग म्यूरल्स, Okay. आई वॉज एक्टिंग फर्स्ट ईयर से। मैंने फर्स्ट ईयर से एक्टिंग शुरू कर दी थी। ठीक है। सो मैंने अपनी एजुकेशन तो खुद सपोर्ट करनी, फाइनेंस करनी शुरू कर दी थी। पर जब मैंने कॉलेज से ग्रेजुएट किया तो आई स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट ऑफ ऑफर्स एंड आई स्टार्टेड टेकिंग देम। एंड देन जब आप इतने प्रोजेक्ट साइन कर लेते हैं और उसके बीच में गैप्स नहीं होते, जी। मैंने इतनी सीरियल्स की एट दैट टाइम, सही। देयर वाज नो टाइम टू पेंट। एंड देन आई मीन आई डिड पेंट अ लिटिल बिट इन द मिडल, लेकिन वो जो मैं करती थी, जब आप अपने आप को इमर्स करते हैं एंड देन फॉर डेज यू आर वर्किंग ऑन वन पेंटिंग और यू नो अ सीरीज, बिल्कुल। वो नहीं हो सका। And then I got into a car accident about 5 years ago, which जिसमें मेरी 5 bones, हड्डियाँ टूटी थी। आपके शोल्डर की बोन्स? मेरी कॉलर बोन जो अभी भी टूटी हुई है, तो वो सर्जरी अभी पेंडिंग है। अच्छा। And that is why there's a lot of muscle issues and back issues. You know, I said ये मुझे दर्द करता है जैसे if I tie something tight around my neck. So that's connected to the accident injuries. Okay. Yeah, that's another long story कि वो क्यों नहीं fix हुआ उस time पे. Negligence by the orthopedic surgeon. Okay. जो उन्होंने जो advice किया उस वक्त, मैंने उनकी advice follow की. He said कि नहीं, surgery नहीं करते. अच्छा. Let's see कि ये naturally heal करती हैं या नहीं. तो 8 months बाद they didn't join. Because he also put me in the wrong sling. And जो sling उन्होंने मुझे shoulder sling पहनाया, उसकी वजह से जो gap था bones में, वो ज़्यादा हो गया। Instead of अब ये दो, अगर ये आपकी bone इस तरह टूट गई, जी जी, so a certain kind of sling is going to keep it close. So जो मैंने पहना उससे gap और बढ़ता गया, तो and then it became stuck there. So and I mean I everybody knows, मैं दिखाती भी हूँ shows में, अभी right now it's covered, but it's like completely broken and it moves, you can see it move.